हेलो 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 नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। खास पेशकश क्यों? क्योंकि आज बात करने जा रहा हूँ मैं ज़ोमैटो केस के बारे में। हाँ दोस्तों, ज़ोमैटो केस, वही केस जो बेंगलुरु में अभी हाल फिलहाल में घटित हुई है। तो सबसे पहले हम पूरी कहानी को जानेंगे, पूरी अफ़वाह, क्योंकि अफ़वाह पे ध्यान नहीं देना हमको। पूरी कहानी को जानते हैं कि क्या कहानी है। तो हितेशा चंद्रानी नामक एक बेंगलुरु की कंटेंट क्रिएटर है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक स्टोरी और एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने ज़ोमैटो और ज़ोमैटो यूएई को टैग किया था। और उन्होंने उस पोस्ट और स्टोरी में एक ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय पर एक संगीन आरोप लगा रही थी। उन्होंने उस डिलीवरी बॉय पर आरोप लगाया कि उस डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी के वक्त उन पर हाथ उठाया। तो सबसे पहले वो क्लिप हमारे पास है जो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। सबसे पहले वो देखते हैं, चलिए देखते हैं। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. Guys, let me tell you the story. The entire story. I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude. He was so freaking rude. And because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, bhaiya, you wait, because I need to check with the team. Either they'll make it free or I don't want the order. And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it, I am okay. But he refused to take the order back. And then again he started screaming at me, bloody, I'm your slave or what? You are asking me to wait for such a long time, what the hell? And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening. And being the single girl staying, it is so dramatic. Like, people do not come up to you, so which is insane. तो भैया ये थी हितेशा चंद्रानी, जिनका पक्ष आपने बहुत ही आराम से सुना, और उम्मीद करता हूँ उनके आरोपों को भी आप समझ चुके होंगे। अब हम मौका देते हैं उनको जिन पर इन्होंने संगीन आरोप लगाए, यानी कि डिलीवरी बॉय। डिलीवरी बॉय का नाम कामराज है। इनकी थोड़ी हिस्ट्री भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका क्या कहना है इस ज़ोमैटो केस के बारे में, चलिए सुनते हैं। Item was late because of the road issue and the traffic issue. I have explained her and I have requested her sorry and for the apology. And I told her, Madam, don't complain. It will affect my work, I told. There is a slipper stand nearby the door. Slipper stand, chappal stand. She had taken the chappals and started beating me. And I was totally shocked because she started in chappals, so I was totally shocked. Then she threw shoes also on me, and when she was started beating in slippers for my safety, I have hit her hand, and in her hand she was wearing a ring. That ring hit her nose, and the injury was happened in the nose, on the top of the nose. And I'm saying I didn't punch her. तो भाइयों, आप लोगों ने दोनों पक्षों को सुना, लेकिन आप एक असमंजस में होंगे, भाई गलती किसकी है? तो मैं बताता हूँ भाई गलती किसकी है। गलती है कामराज की। कामराज की क्या गलती है कि कामराज गरीब है। कामराज एक लड़का है। हमारा देश दोहरी मानसिकता वाला है, जहाँ सोचता है कि भैया लड़का लड़की एक समान, वहीं सोचता है नहीं लेडीज़ फर्स्ट। तो ये हमारे देश की दोहरी मानसिकता बहुत दिनों से चली आ रही है, जो हम बदल नहीं सकते। तो कामराज की यही गलती है कि भैया वो गरीब है। और आप लोग को शायद पता नहीं है, लेकिन कामराज की माँ बीमार है, फिर भी वो ज़ोमैटो में सेवा दे रहा है। उसके घर भले ही खाना ना हो,
लेकिन तुम्हारे घर तक खाना पहुंचा रहा है। हाँ भाई, ट्रैफिक की समस्या थी, कुछ समस्या थी, वो बेचारा टाइम से नहीं पहुंचा और तुम फ्री में उससे खाना मांग रही हो, नहीं दे रहा है तो तुम उसको चप्पल से मार रही हो और उल्टा इल्ज़ाम भी लगा रही हो कि उन्होंने बीट किया। भाई पहली बात तो कामराज ने कोई अंगूठी पहनी नहीं थी उसको, अब तुम मारोगी तो मैं तो तुमको 4 चप्पल मारूंगा, तुम मेरे को 2 चप्पल मारोगी, मैं तुम्हें 4 चप्पल मारूंगा। लेकिन वो तो उसकी शरीफाई थी कि बेचारे ने सिर्फ अपना बचाव किया और बचाव में तुम्हारा ही अंगूठी तुमको लग गया तो भी आप लोगों ने केस कर दिया। लेकिन कोई भी लड़का होगा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे पहले आएगा। नौकरी है ही लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी पहले ही होती है। हाँ, क्योंकि वो गरीब है, सेल्फ रिस्पेक्ट पहले नहीं देखेगा क्योंकि उसकी बीमार माँ है, घर में खाना है कि नहीं वो भी देखना पड़ता है। पहले सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देखना पड़ेगा, पहले अपने घर की गरीबी देखनी पड़ेगी। वो सोचेगा कि हाँ, अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट देख रहा हूँ भैया तो शायद आज मेरे घर में खाना नहीं बनेगा, इसलिए शायद वो चुप रहा होगा। लेकिन तुम उसकी गरीबाई का फ़ायदा उठा रही हो। वो बेचारा कितना गिड़गिड़ा कर रो रहा है और तुम लोग क्या फ़ायदा उठा देते हो। पहले तो हम इस कामराज की हिस्ट्री जानते हैं जोमेटो के साथ। तो कामराज 26 महीनों से जोमेटो के साथ जुड़ा हुआ है और उन्होंने 26 महीनों में 5000 से ज़्यादा डिलीवरी की है। आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है, जोमेटो पर 5000 से ज़्यादा डिलीवरी किया और प्रत्येक डिलीवरी पर 4.7 से ज़्यादा ही रेटिंग है। तो मतलब किसी को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस मैडम को तक दिक्कत हो गई क्योंकि इनको फ्री में खाना नहीं मिला और चप्पल से धुलाई कर दी और उल्टा केस भी बना दी। तो भाइयों ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन को भले ही फ़ोटो खींच लीजिए या फिर पॉज करके देखिए, लेकिन ध्यान से देखिए कि इन्होंने कौन कौन से हैशटैग यूज़ किया और किन किन लोगों को टैग किया। चलिए मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। हैशटैग अवेयरसेफ, हैशटैग जोमेटो, हैशटैग जोमेटो इंडिया, हैशटैग नॉट सेफ, हैशटैग थ्रेड, हैशटैग हार्ट ब्रोकन, हैशटैग सपोर्ट, हैशटैग शेयर, हैशटैग हेल्प मी गाइस, हैशटैग इंडीड, @जोमेटो, @जोमालेन, @जोमेटो यूई। भैया यूई से कोई मदद करने नहीं आएगा, वैसे भी जोमेटो इंडिया की कंपनी है तो इंडिया को ही टैग करो, ओके। और आज तक, इंडिया टीवी न्यूज़, BBC न्यूज़ इंडिया, नरेंद्र मोदी। वाह 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 भाई, नरेंद्र मोदी जी को टैग करें, मतलब अब नरेंद्र मोदी के पास कुछ काम नहीं रह गया है। तुम्हारा जोमेटो का केस भी नरेंद्र मोदी ही संभालेंगे हैं, वो देश नहीं चलाए, अब तुम्हारा जोमेटो चलाएं। टाइम्स ऑफ इंडिया, TV9 कन्नड़ ऑफिशियल। भाई पूरा मामला मैं समझ चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए है, क्योंकि अगर आप पे कोई अत्याचार किया या फिर आपको किसी ने मारा तो आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ केस लिखाएंगे और उसे सज़ा दिलाएंगे। लेकिन आपने इस सबसे पहले एक वीडियो बनाया, उसे सोशल मीडिया पर बाकायदा इतने सारे हैशटैग और इतने लोगों को टैग कर कर पोस्ट किया, सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। ये सिर्फ पब्लिसिटी दर्शाता है, लेकिन लास्ट में मदद कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ पुलिस वाले ही ना। इसलिए आपको पहले ही पुलिस वालों के पास जाना चाहिए था, आपको मदद ज़रूर मिलती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस विषय में जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल क्या करें। तो दीपेंद्र गोयल को जैसे ही इस केस की जानकारी मिलती है वो तुरंत ही कामराज को सस्पेंड कर दिए हैं अभी के लिए, और हितेशा चंद्रानी का मेडिकल खर्च उठा रहे हैं और वहीं कामराज का कानूनी खर्च भी उठा रहे हैं, जो लाजमी है और उनको उठाना भी चाहिए था। उसके लिए मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मैं रोस्टिंग वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमारी जो दोहरी मानसिकता है बदल जाए। एक गरीब को खाने पीने दो, उसको कमाने दो, उस पर अत्याचार मत करो भाई। चलिए, अगर मेरे वीडियो से कुछ सीख मिली है तो भाई कमेंट करो और मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार लेकर। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।